बच्चों, welcome to Adishri publication. So in our today's class, my dear student, we all are going to start your chapter number 9, okay? And the name of your chapter number 9 is Safety Measures and First Aid, okay? In this chapter, my dear student, we all are going to see what safety precaution we have to take while traveling on roads, and as well as what is the concept behind first aid, okay? Now come with me, let's see the concept overview of the chapter. Safety at different places and first aid, okay? And apart from them, let's see what is the curricular goal. Understand basic safety rules at home, school and on road, okay? So what are the basic safety measures which we have to follow while traveling on the road, or if you are at home and in your school? And second, learn to identify danger signs and act responsibly. हम लोगों को रोड पे बहुत सारे साइंस दिखते हैं, सिंबल्स दिखते हैं, हम लोगों को उनको भी पहचानना सीखना है, ठीक है? और उनके अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करेंगे, ठीक है? नो सिंपल फर्स्ट एड स्टेप फॉर माइनर इंजरीज. अगर आपको हल्की फुल्की चोट लग गई है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट आप खुद से कर सकते हो. तो वो कैसे करोगे, ये भी अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है? सो कम विद मी एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी, we are always busy in finishing our daily routine tasks. Sometimes we are in such a hurry that we get hurt or meet with an accident. हम सब लोग बहुत ज्यादा बिजी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है? आप लोग सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, फिर होमवर्क फिनिश करते हो, खेलने जाते हो, खाते हो और सो जाते हो, ठीक है? हम लोगों के साथ भी वही है. हम जाते हैं बाहर, सुबह उठते हैं, नाश्ता किया, अपना काम किया, फिर वापस घर आए, खाना खाया और सो गए. हम सब लोग की लाइफ में बहुत बिजी है बच्चों, ठीक है? तो देखिए, हम लोग कभी कभी इतनी जल्दबाजी करते हैं कि हमें चोट लग जाती है, ठीक है? हम कोई काम कर रहे हैं, अचानक से ऑल ऑफ सडन हमें चोट लग जाती है, ठीक है? There may be many other causes of accident, but carelessness is the main reason. Accidents may cause physical injury. This physical injury may be dangerous also. ठीक है? तो चोट कैसे लगती है? तो चोट लगने की बहुत सारी वजह होती है, ठीक है? बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से हम लोग खुद को हर्ट कर लेते हैं, ठीक है? एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? When we hurt our physical body, उसी को कहा जाता है आपका एक्सीडेंट, ठीक है? और ये कभी कभी हल्का सा कट भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, ठीक है? तो we should be careful to avoid accidents, so we must follow some rules to keep ourselves safe. These rules are called safety rules, okay? So my dear students, if we want to protect ourselves from this minor or major accidents, then for this precaution we have to take many measures, okay? While it doesn't matter we are at home or at school or whenever we are walking on the road, it doesn't matter, okay? We always have to take precautions, ठीक है? क्योंकि एक्सीडेंट का सबसे बड़ा वजह क्या है? केयरलेसनेस, ठीक है? लापरवाही. Now come with me and let's see the next topic of your chapter, that is safety at different places. आप अलग अलग जगहों पे हो तो किस तरीके से आप सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर सकते हो? तो देखिए, we must always be careful as carelessness can harm us at any place. आप कहीं पे भी रहिए, केयरफुल रहिए, ठीक है? Let us read about some safety rules that should be followed at different places. So my dear students, now we are going to see about those safety rules which we have to follow at home, at school, or on road, okay? So first safety measure we are going to see which we have to follow at home, okay? So this is the first one. Never leave your toys, bags, shoes, etc. lying on the floor. Someone may get hurt by tripping over them. तो देखिए, आप सब लोग को खेलना बहुत पसंद है ना? तो कभी भी खेलते हुए आप लोग अपने टॉयज को, अपने स्कूल बैग्स को, अपने शूज को, कोई भी चीज जो आपका है उसे जमीन में मत छोड़िए ऐसे, क्योंकि आप तो छोड़ के चले जाओगे, लेकिन हो सकता है आपके फैमिली में से कोई भी, किसी का भी पैर उस टॉय पे, बैग पे या शूज पे क्या हो सकता है? फंस सकते हैं वो और गिर सकते हैं, और जब वो गिरेंगे मे बी दे कैन हर्ट देमसेल्फ, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट है आपका never run while climbing up or coming down the stairs, okay? So whenever my dear student you are climbing on the stairs or while coming down from the stairs, never run, ठीक है? दौड़ना नहीं है, आराम से जाइए, आराम से आइए, ठीक है? Then so my dear student, now we are going to see safety at different places, okay? हम लोग different जगह पे रहते हैं, तो कैसे हम safety measures को follow कर सकते हैं? So let's see.
देखिए, वी मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल एज केयरलेसनेस कैन हार्म अस एट एनी प्लेस. लेट अस लर्न अबाउट सम सेफ्टी रूल्स दैट शुड बी फॉलोड एट डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, हम लोगों को हमेशा केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आप केयरलेसनेस दिखाओगे यानी लापरवाही दिखाओगे तो आपको चोट लगेगी. ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं कहाँ पे हम रहते हैं, तो किस तरह से हम लोग को सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है. सो द फर्स्ट सेफ्टी रूल्स व्हिच वी हैव टू फॉलो व्हाइल हैविंग एट स्कूल, व्हाइल हैविंग एट होम is never leave your toys, bags, shoes, etc. lying on the floor. Someone can get hurt by tripping over them. देखिए, आप सब लोगों को खिलौने टॉय से खेलना बहुत अच्छा लगता है. तो बच्चों देखिए, जब भी आप टॉय से खेलते हो तो टॉयज को अपने जमीन पर, अपने बैग्स को, अपने शूज को कभी भी जमीन पे मत छोड़िए, क्योंकि क्या हो सकता है, किसी का भी पैर उसमें फंसेगा और वो गिर सकता है, इवन आपका भी पैर फंस सकता है. ठीक है, तो हमेशा उसको क्या कीजिए, एक साइड में रखिए. देन never run while climbing up or coming down the stairs. And my dear student, remember, you are not going to run while climbing on the stairs and coming down from the stairs. Never run. Okay. Then you should not play with sharp objects like blades, knives, scissors or tools, etc. These objects can cut your fingers. कभी भी बहुत ज्यादा शार्प ऑब्जेक्ट से मत खेलिए आप, क्योंकि अगर आप शार्प ऑब्जेक्ट से खेलते हो, जैसे ब्लेड्स, नाइफ, सीजर्स या टूल्स हैं, तो उनसे आपके हाथ में कट लग सकता है और आपको ब्लीडिंग हो सकती है. ठीक है, चलिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, do not play with electrical gadgets such as heater or geysers, etc. Never touch electrical switches with wet hands. You may get an electric shock and that can be dangerous. कभी भी आप सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स के साथ नहीं खेलना है. जैसे आपका गीजर है, आपका हीटर है, क्योंकि हो सकता है आप जब उसको टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए. ठीक है. देन वेट फ्लोर्स कैन कॉज एक्सीडेंट्स. ठीक है, you may slip and get hurt, so be careful while walking on the wet floor. Even जो गीला फ्लोर होता है ना, गीले फ्लोर पे भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. फ्लोर अभी गीला है, ठीक है, तो उसमें कभी आप मत दौड़िए, क्योंकि आपका पैर स्लिप हो सकता है और आप गिर सकते हो. ठीक है. देन do not touch hot pans, lighted candles, etc. You may burn yourself. You should always be careful while lighting candles, firecrackers, etc. कभी भी गर्म पैन को मत छुइए. कोई भी लाइट या कैंडल जल रही है उनको मत टच कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका हाथ जल सकता है और आपको चोट लग सकती है. ठीक है. साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आप कैंडल जला रहे हो, फायर क्रैकर्स जला रहे हो, आपको हमेशा बहुत ही ज्यादा क्या रहना है, सावधान रहना है. ठीक है. देन we should never take any medicine without asking an elder. Okay, and my dear student, remember, never take any kind of medicines while seeking the permission from your elder people. Okay. Then always put vegetables and fruits peel into the dustbin. ठीक है, हमेशा वेजिटेबल पील्स और फ्रूट के पील्स को कहाँ फेंकोगे, डस्टबिन में ही फेंकोगे. ठीक है. देन डू नॉट थ्रो टॉयज और एनीथिंग एट ईच अदर वाइल प्लेइंग. जब आप खेलते हो ना, तो कभी भी एक दूसरे के ऊपर कोई भी टॉय या कोई भी चीज मत फेंकिए, उससे भी आपको चोट लग सकती है. ठीक है, तो ये सारे मेजर्स माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग को फॉलो करने, ये सारे प्रिकॉशंस, ये सारे सेफ्टी मेजर्स हमें तब फॉलो करने जब हम घर पे रहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट दो सेफ्टी मेजर्स व्हिच वी हैव टू फॉलो व्हाइल प्लेइंग इन द ground. Okay, so let's see what safety measures we have to follow while playing in the ground. First one is, my dear student, do not hit anyone with bat or any object. It can cause serious injuries. ठीक है, जब भी आप खेल खेलते हो, जब भी आप कोई खेल खेलते हो, किसी को भी बैट से या किसी और ऑब्जेक्ट से मत मारिए, उससे उन्हें बहुत ज्यादा चोट लग सकती है. ठीक है. देन we should not push or hit each other in the playground or on swings. We may get hurt. ठीक है, आप कभी भी झूला झूल रहे हो तो किसी को धक्का मत दीजिए. ठीक है, क्यों, क्या हो सकता है, वो झूला झूलते हुए आपने धक्का दिया, वो नीचे गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है, तो ये काम आप नहीं करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद देखिए क्या है, डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी हेजेस और बार्ब्ड वायर्स. कभी भी जहां पे नुकीले या कोई कटीली चीजें होती है वहां पे आप मत खेलिए, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है. ठीक है. Then learn the rules of the game and wait patiently for your turn. Okay, आप कोई भी गेम खेल रहे हो माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस गेम के रूल्स को समझिए और बहुत ही पेशेंटली आप अपने टर्न का वेट कीजिए. ओके. देन
on the road. Now we are going to see about all those precautionary measures which we have to take while walking on the road. Okay, so first my dears, always walk on the right side of the road. ठीक है, पहली बात तो आप लोग हमेशा फुटपाथ पे पैदल चलेंगे, लेकिन अगर रोड पे फुटपाथ नहीं है तो रोड के आप राइट साइड से चलोगे. ठीक है, इफ देयर इज अ फुटपाथ, वॉक ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ है तो फुटपाथ पे आप चलोगे. ठीक है, देन cross the road at zebra crossing only. We must look on both sides before crossing. ठीक है, हम लोगों को रोड कहां से क्रॉस करनी चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करनी चाहिए. जेब्रा क्रॉसिंग माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस टाइप के स्ट्रिप्ड, आपकी ब्लैक और व्हाइट कलर के स्ट्रिप्ड एरिया होता है रोड पे, वहीं पे आपको क्या करना है? रोड क्रॉस करना है. ठीक है, और रोड क्रॉस करने से पहले हमेशा अपने लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ देख के चलिएगा. ठीक है, then never get in or off a moving bus. Wait in a queue and wait for the bus to stop. ठीक है, कभी भी चलती हुई बस से उतरने का ट्राई मत कीजिए. ठीक है, हमेशा अपनी बारी का इंतजार कीजिए और बस स्टॉप पे बस का वेट करो आप लोग. ठीक है, देन never keep your head or arm out of a moving vehicle. It may cause an accident. ठीक है, आप मूविंग व्हीकल से जा रहे हो, कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है तो कभी भी आप अपने हाथ को या अपने सर को आप बाहर नहीं निकालेंगे. ऐसा करने से आपको चोट लग सकती है. ठीक है, देन इफ यू आर राइडिंग अ साइकिल, गिव सिग्नल बिफोर टर्निंग. अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आप सिग्नल देंगे जब भी आपको टर्न लेना है. ठीक है, चलिए. And my dear students, now we are going to see those precautionary measures which you students have to take in your school. ठीक है, तो स्कूल में कौन कौन सी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए? तो देखिए पहला ये है, नेवर रन इन कॉरिडोर्स एंड ऑन द स्टेयर्स ऑफ द स्कूल. कभी भी स्कूल के कॉरिडोर पे या स्टेयर्स पे आपको दौड़ना नहीं है. आप गिर जाओगे, आपको चोट लगेगी. ठीक है, डू नॉट पुश अदर्स व्हाइल एंटरिंग एंड लीविंग द क्लासरूम. अब क्लासरूम से जब आप बाहर निकलते हो, जब छुट्टी होती है या जब आप क्लासरूम में एंटर करते हो, तो कभी भी अपने फ्रेंड्स को आपको धक्का नहीं देना है. ठीक है, देन do not use a blade or do not use a blade to sharpen pencil. It can cut your finger. Always use a sharpener. अगर आपको आपकी पेंसिल को शार्प करना है तो कभी भी ब्लेड का यूज मत कीजिए. हमेशा पेंसिल को शार्प करने के लिए यू हैव टू यूज शार्पनर. ठीक है, देन do not jump on the furniture. Do not run in the class. You can fall and hurt yourself. ठीक है, फर्नीचर्स के ऊपर मत कूदिए, क्योंकि फर्नीचर्स के ऊपर कूदने से आपका पैर स्लिप हो सकता है या फर्नीचर गिर सकता है, तो साथ ही साथ आप भी गिर जाओगे और गिरोगे तो क्या होगा? आप ही को चोट लगेगी. ठीक है, देन नेवर फाइट विद योर फ्रेंड्स व्हाइल प्लेइंग. कभी भी अपने दोस्तों के साथ झगड़ा मत कीजिए खेलते टाइम. ठीक है, उसके बाद नेवर प्ले विद योर वाटर बॉटल और स्कूल बैग. कभी भी आप अपने स्कूल बैग और वाटर बॉटल के साथ नहीं खेलोगे. ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एड. अब ये फर्स्ट एड क्या होता है? चलिए देखिए फर्स्ट एड क्या है. Sometimes accident happen due to others' fault also. The injured person needs immediate help. First aid is the temporary relief given to the injured person before the arrival of a doctor. कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमारी गलती नहीं है पर सामने वाले की गलती होती है, इसलिए एक्सीडेंट हो जाता है. और जब एक्सीडेंट हुआ है तो किसी को चोट लगती है. ठीक है, तो फर्स्ट एड क्या होता है? देखिए फर्स्ट एड वो टेम्पररी रिलीफ है. जब किसी को चोट लगी है, फर्स्ट एड वो टेम्पररी रिलीफ है. जब किसी को चोट लगती है तब आप देते हो. ठीक है, डेटॉल से क्या करते हो? आप क्लीन करते हो जहां पे भी चोट लगा है. ठीक है, तो यही सब आपकी फर्स्ट एड आती हैं. तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट एड में आप क्या कर सकते हो. ठीक है, इफ समवन गेट्स हर्ट वी मस्ट रिमेंबर दैट अगर किसी को चोट लगती है तो कौन कौन सी बातों का हम सबको ख्याल रखना चाहिए? पहला है बच्चों, वी शुड गेट पैनिक. ठीक है, वी शुड नॉट गेट पैनिक. ठीक है, पैनिक मत कीजिए, घबराइए नहीं, आप उसकी हेल्प करने की ट्राई कीजिए. ठीक है, देन है बच्चों ये देखिए, do not crowd near the injured person. Give him her air to breathe freely. अगर किसी को चोट लगी है तो उसका आसपास भीड़ मत लगाइए, उसको ब्रीथ करने दीजिए, उसको हवा आराम से सांस लेने दीजिए पहले. ठीक है, फिर आपको क्या करना है देखिए, इफ द पर्सन इज बैडली इंजर्ड कीप हिम हर स्टिल एंड क्वाइट. अगर किसी को बहुत ज्यादा चोट लग गई है, ठीक है, फिर भी आप उसको ऐसे ही रखिए, फर्स्ट एड देने की कोशिश कीजिए और चुप रहिए, शोर नहीं मचाना है आपको. ठीक है, देन we must not move the injured person because if he she can has broken any bone it may get worse. ठीक है,
जो जिससे चोट लगी है उसको बार बार मूव मत कीजिए। मान लीजिए वो इंजर्ड पर्सन की कोई बोन क्रैक हुई हो, तो जब आप उसको मूव करोगे तो वो बोन भी क्या हो सकता है, क्रैक कर सकता है दोबारा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है बच्चों, देखिए, वी मस्ट कॉल आवर एल्डर्स और डॉक्टर्स इमीडिएट। ठीक है, तो बच्चों देखिए, हम लोगों को अपने किसी बड़ों को या डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए, इफ he or she is bleeding we must tie a bandage or clean handkerchief around the wound to stop the bleeding। ठीक है, अगर उसे चोट लगी हुई है, चोट लगी है तो खून गिर रहा है, अगर उसका ब्लड निकल रहा है बच्चों, तो उस ब्लड निकलने वाली जगह पे आप क्या करोगे, बैंडेज लगा दीजिए। ठीक है, या फिर क्लीन हैंकरचिफ लगा दीजिए ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है, देन क्या करना है, देखिए, रन कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया इन केस ऑफ बर्न इंजरी टू सूद इट। तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए किसी को चोट लगी है बट वो चोट लगी है जलने की वजह से, तो आप जलने को कैसे करोगे, जल जहां पे जला हुआ है ना, हाथ या कहीं पे भी जला है, वहां पे पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे ताकि वो जलन कम हो। ठीक है, फिर if someone catches fire, make him her roll on the floor or cover him her with a blanket to out the flame। अगर किसी की बॉडी में आग लग गई है तो तुरंत उसकी बॉडी पर ब्लैंकेट डालिए, उसको रोल कराइए, तो इससे क्या होगा, आग बुझ जाएगी। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट एड। ओके, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। सो हियर आवर चैप्टर एंड्स। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द रैप इट अप ऑफ दिस चैप्टर। यू मस्ट फॉलो सम रूल्स फॉर योर सेफ्टी। आप अपने खुद की सेफ्टी के लिए आप लोग कुछ रूल्स फॉलो करोगे। ठीक है, एट होम यू मस्ट नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, फायर एक्सेट्रा। आप अपने घर पे, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से मत खेलिए। ठीक है, इन स्कूल यू शुड नॉट रन इन द क्लास और ऑन स्टेयर्स। जब आप स्कूल में रहते हो तो आप अपने स्कूल में बच्चों कभी भी क्लास में स्टेयर्स पे आप दौड़ेंगे नहीं। ठीक है, यू शुड नॉट पुश और हिट एनीवन व्हाइल प्लेइंग। खेल खेलते टाइम कोई भी गेम खेल रहे हो तो किसी को धक्का नहीं देंगे आप। ठीक है, on the road you should follow the safety rules, and while walking or while traveling on the road you have to follow the safety rules। okay, then if someone is hurt you should give him her first aid। ठीक है, अगर किसी को चोट लगी है तो आप उसको फर्स्ट एड देंगे। ठीक है, so this is all about the chapter my dear student। now just go thoroughly through this chapter and complete the self evaluation activities of the chapter। okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter। till then you all have to take very good care of yourself। bye।